गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने उनके रंग से मुताल्लिक तनकीदों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने उनके रंग पर तनकीद करने वालों पर चेन्नई के एक स्कूल में मुनक़िदा तकरीब के दौरान शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस इस बात का है कि बाज़ अफराद उनके रंग का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। इस तरह की तनकीदें जारी रखने पर उन्हें संगीन अवाक़िब का सामना करना पड़ेगा। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वजीर थलसानी श्रीनिवास यादव और एमएलसी जीवन रेड्डी के दरमियान बहस व तकरार हो गई। बीसी तबके की बहबूद पर अरकान और मुतल्लिका वजीर के इजहार ख्याल के दौरान वजीर थलसानी श्रीनिवास यादव ने मदाखलत की, जिस पर कांग्रेस के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने शदीद एतराज़ किया। इस मौके पर सदर नशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने मदाखलत करते हुए जज्बात को सर्द किया और सूरत हाल को काबू में किया। క్వశ్చన్ ఉండని ఎవరైనా సిగ్నేచర్ ఉండని వారు అడుగుతారు అధ్యక్ష, మీరు కూడా అవకాశం ఇస్తారు. కానీ పేద బడుగు బలహీన వర్గాలు ఇన్ని లక్షలాది మంది కోట్లాది మంది ఉండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంత అద్భుతంగా, అంటే ఈ 8 సంవత్సరాల కాలంలోనే మా మంత్రి గారు చెప్పినట్టు ఇన్ని లక్షలాది మందికి అవకాశాలు చదువులో కానీ ఉద్యోగాలలో కానీ ఇన్ని, ఆ విషయం మాత్రం మాట్లాడు. ఇది మాట్లాడతానండి, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా అధ్యక్ష. మా ఈశ్వరన్న మాట్లాడినప్పుడు కూడా చెప్తలేడు. అంటే పేదలంటే బడుగు బలహీన వర్గాలంటే మరి ఎంత హీనంగా ఉంటుందో మీకు దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష. బయట వస్తే కూడా మీరు మీడియా పాయింట్ దగ్గర కూడా మాట్లాడుతూ చేసిన దానికి అప్రిషియేట్ చేయాలి కదా, మాకు కూడా ఉంటది కదా అధ్యక్ష. గౌరవ మంత్రి గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏంటో నాకా తెలియదు, కనీసం వారికని తెలియాలి. సభలో మీ అనుమతితో అధ్యక్ష గౌరవ మంత్రి ఈశ్వర్ గారు ఏదైతున్నారో ఇదే బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక బీసీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ బోధనపై క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇంకే విధంగా మెరుగైన రీతిలో దాన్ని వృద్ధి చేయాలి, ఏ విధంగా నాణ్యమైన విద్య అందజేయాలి, బలహీన వర్గాలకు మైనారిటీ వర్గాలకు సంబంధించి ఏదైతుందో నేను సూచన చేస్తా అధ్యక్ష. నేను ఐ హ్యావ్ కాంప్లిమెంటెడ్. నువ్వు ఎక్కడ వీళ్ళకి ఏదో ఎక్కడ నిద్రపోయి ఈ పులిస్ వచ్చి ఏదైతున్నదో జీవన్ రెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడుతున్నట్టు ఏమన్నట్టే. ముందు మీ శాఖ సంఘం చూసుకో, విశాఖ సంఘం చూసుకో. ఇవాళ పాడి రైతులకు ఏదైతుందో 4 రూపాయలు ఇన్సెంట్ ఇస్తా అని చెప్పబట్టి 4 సంవత్సరాలు గడుస్తుంది అధ్యక్ష. ఇదే సభలో ఏదైతుందో మీరు స్వయంగా పేర్కొన్నారు, పాడి రైతులకు సంబంధించిన 4 రూపాయలు ఇన్సెంట్ ఏదైతుందో ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి ఇంతవరకు దిక్కులే చెప్పంటు. నేను ఏం చెప్పినప్పుడు ఏమన్నాడంటే बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि असेंबली में वजीर आला चंद्रशेखर राव ने मुकम्मल तौर पर झूठ का सहारा लेते हुए रियासत के अवाम को कायल करवाने की कोशिश की, जो अफसोसनाक बात है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव क्या बात कर रहे हैं और किसके लिए बात कर रहे हैं, ये समझ से कासिर है। वजीर आला ने सिर्फ मोदी को ही निशाना बनाया और मरकजी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की। वजीर आला ने बजट पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वज़ीर आला की सतह वाले फ़र्द की जानिब से इतना झूठ का सहारा लिया जा रहा है, जो अफसोसनाक बात है। అసలు ముఖ్యమంత్రి ఇలా ఏం మాట్లాడాడు, దేనికోసం మాట్లాడాడు ఎవరికి అర్థం కాలే. కేవలం మోడీ గారు తిట్టడానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయడం తప్ప ఆయన చేసి లేదు. ఆయన ప్రభుత్వం, ఈ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్ట బడ్జెట్ పైన ఒక్క మాట మాట్లాడలే. ఆయన ఒక్క మాట బడ్జెట్ గురించి ప్రస్తుతం మాట్లాడలేదనే, బడ్జెట్ లో విషయాలు ప్రస్తావించలే. కేవలం ఆయన ఏంటంటే మొన్న మోడీ గారు పార్లమెంట్ లో మాట్లాడితే దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఇలా అబ్బురపడ్డది, ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చిండు దేశ ప్రధాని చెప్పి చర్చించబట్టి ఈయన ఆయనతో పోల్చుకోండి. ఈయన सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मुल्क में सरकारी इदारों, अहम सनतों के साथ साथ कंप्यूटर का इनकलाब राजीव गांधी के दौर में लाया गया। उन्होंने असेंबली में मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क की माशी तरक्की को कांग्रेस ने यकीनी बनाया है। जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ में कांग्रेस की नाकामी के इल्ज़ाम की वो शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई है। तेलंगाना अवाम की सोच और ख्वाहिशात के मुताबिक रियासत की तश्कील अमल में लाई गई है। లేకపోతే 100 రోజుల పనిగా పేరుగాంచిన మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది నిరుపేద ప్రజల బతకడానికి కావాల్సిన ఏర్పాటు చేసేందుకు విఫలమైందంటామా? దేనికి విఫలమైందంటాం? ఈనాటికి కూడా ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కానీ లేకపోతే
ఈ దేశ సంపదని పెంపొందించేటువంటి అనేక కోర్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, లేకపోతే కంప్యూటర్ రెవల్యూషన్లో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషించి ఈ దేశంలో కంప్యూటర్ రెవల్యూషన్ రావాలని చెప్పి పునాదులు వేసినటువంటి రాజీవ్ గాంధీ గారి ఆలోచన కానీ, कुल हिंद सनती नुमाइश के अख्ताम के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। इसके पेश नज़र अवाम में नुमाइश के ताल्लुक से काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। नुमाइश के अख्ताम के लिए 3 दिन होने के सबब हर हफ्ता और इतवार के बरखिलाफ जारिया इतवार को अवाम का काफ़ी हुजूम नुमाइश में देखा गया। इस नुमाइश में तिजारती स्टॉल्स के बशमूल सरकारी महकमे जात के बेशतर स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं। इस नुमाइश को पहली मरतबा देखने वालों ने इस पर मसरत का इजहार किया। बाज़ ख़वातीन ने कहा कि वह हर साल इस नुमाइश को देखने और ख़रीदारी करने के लिए आती हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि कोरोना की सूरत हाल के बाद पहली मरतबा ये नुमाइश मामूल के मुताबिक मुनक़्क़िद की जा रही है। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के हिस्से के तौर पर जग्गारम इलाके में आवाम से मुलाकात की। उन्होंने गरीबों के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। झोपड़ियों में ज़ाती मकान के बगैर ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद की मुश्किलात से रेवंत रेड्डी ने वाकिफियत हासिल की और वादा किया कि कांग्रेस हुकूमत में उनसे इंसाफ किया जाएगा। कुकटपल्ली में खानगी ट्रेवल्स की 3 बसों में आग लग गई, जिसके नतीजे में ये बसें जलकर खाकिस्तार हो गई। कल पेश आए इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अहदेदारों के मुताबिक खानगी ट्रेवल्स की 3 बसें आइडियल नहर के करीब ठहराई गई थीं कि इनमें अचानक आग लग गई। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स ने आग के शोलों को बुझाने की कोशिश की। बाद अज़ां फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम इस वाक़े में ये बसें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गई। रसूलपुरा नाले के कामों में ताख़िर पर आवाम में शदीद बरहमी पाई जाती है। आवाम को ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में पानी बस्तियों में दाखिल हो रहा था, जिस पर जीएचएमसी ने एसएनडीपी के कामों का आगाज़ किया। 985 करोड़ रुपए से इस नाले के कामों का आगाज़ किया गया, ताहम इसमें ताख़ीर हो रही है। मुकामी अफराद ने इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस काम में 15 दिनों से कुछ बेहतरी ज़रूर हुई है, लेकिन इससे पहले कामों में काफ़ी ताख़ीर हो रही थी। उन्होंने कहा कि अप्रैल तक कामों की तकमील का वादा किया गया है, जबकि इब्तिदा में 3 माह में काम मुकम्मल करने की बात कही गई थी। कागज़नगर बल्दिया के सैनिटेशन वर्कर्स ने काम का बाइकआउट किया और 4 माह की ज़ेर इल्तवा तनख्वाह फौरी फराहम करने का मुतालबा किया। इन वर्कर्स ने सियाह बैचेस लगाकर दफ्तर के सामने धरना भी दिया। उन्होंने इस मौके पर अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की और कहा कि 5 दिनों से एहतजाज के बावजूद हुकूमत उसे नज़रअंदाज कर रही है। इस धरने के सबब बल्दिया के हुदूद में जगह जगह कचरा नजर आ रहा था। चारमीनार होटल एंड कैटरर्स मुगलपुरा के क़याम के 3 साल के मौके पर मुमताज़ अहमद खान MLA चारमीनार ने तकरीब में शिरकत की। उन्होंने 3री एनिवर्सरी के मौके पर मुबारकबाद पेश की और तकरीब का रिबन काट कर इफ्तिताह अंजाम दिया। होटल के मालिक मोहम्मद यासीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर 35 अफराद से 10,000 अफराद तक के लिए कैटरिंग का इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि एडवांस रकम लिए बगैर घर तक खाना पहुँचाया जाता है। उन्होंने कहा कि 70 अफराद के लिए प्योर पोटला मटन बिरयानी 7,500 रुपये में फ़राहम की जाती है। 70 अफराद के लिए चिकन बिरयानी हंडी 5,500 रुपये, मटन बीफ बिरयानी 5,500 रुपये। तमाम अक़साम के मीठे भी दस्तयाब हैं। 24 घंटे खिदमत फराहम की जाती है। हर किस्म के फंक्शन के ऑर्डर भी घंटा 1.5 घंटे तक अंजाम दे दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह ये तनाब कट्टा मुगलपुरे के ऊपर हमारे बिरादर मोहम्मद यासीन साहब चारमीनार होटल और कैटरिंग की जानिब से होटल का क़याम 3 साल कबल अमल में आया। अल्लाह के फजल करम से अच्छे कारोबार चल रहे हैं। माशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके कारोबार में तरक्की दे। बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ और अच्छा मटेरियल सप्लाई करते हुए आप इस होटल को चला रहे हैं। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे मोहम्मद यासीन साहब की हिम्मत अफजाई करें और इनके कारोबार में आप लोगों के ताउन की बेहद जरूरत है, क्योंकि
बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे अखलाक के मोहम्मद यासीन साहब हर किसी से मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ इस इलाके के अंदर कारोबार का क़याम अमल में लाए और बड़े अच्छी तरीके से कारोबार चल रहा है। मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मोहम्मद यासीन साहब को इनके कारोबार में तरक्की दे। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। सनती जोन के लिए कामारेड्डी में मास्टर प्लान की तजवीज़ के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत मुलतवी कर दी गई है। प्रजा शांति पार्टी के सरबराह के ए पॉल ने इस मास्टर प्लान के खिलाफ रियासती हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, ताहम हाई कोर्ट ने पॉल की अर्जी पर समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कबल अज़ रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट को बताया कि मास्टर प्लान के फैसले को रोक दिया गया है। इस मौके पर हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी थी कि अदालत को बताए बगैर मास्टर प्लान पर कोई फैसला न किया जाए। यादाद्री भुवनगिर जिले में मंदिर में घुसकर चोरों ने हंडी को नुकसान पहुंचाकर रकम की चोरी कर ली और फरार हो गए। चोरी के ये मनाजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। मंदिर के जिम्मेदारों की शिकायत पर पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी। दरगाह हजरत माशूक रब्बानी सानी रहमतुल्लाह अलैह वाक़े वरंगल के सजादा नशीन हज़रत सैयद शाह हैदर बिलालुद्दीन क़ादरी अल जिलानी माशूक़ी अलमारूफ नवीद बाबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरगाह हज़रत माशूक रब्बानी सानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 13 ta 15 फरवरी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद किया जाएगा। 13 फरवरी को बाद नमाज असर फ़ातिहा से उर्स तक़ारीब का आगाज़ होगा। बाद मगरिब ताम बराए आम व ख़ास का अहतमाम रहेगा। 9 बजे शब जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़मत औलिया मुनक़िद किया जाएगा। रात देर गए 2:30 बजे जुलूस संदल जदीद गढ़ी से बरामद होगा और सुबह 4 बजे बारगाह माशूक़ रब्बानी सानी रहमतुल्लाह अलैह पहुँचेगा। 14 फरवरी को बाद नमाज इशा ताम लंगर का अहतमाम गढ़ी में किया जाएगा। महफिल नात शरीफ संदल सानी और शब चरागा भी होंगे। 15 फरवरी को बाद नमाज फजर ख़त्म कलाम मजीद फ़ातिहा ख़वानी और सलाम व दुआ के साथ 6 रोज़ा उर्स शरीफ तक़ारीब का इख्तिताम अमल में आएगा। ఉంటుంది అది కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అయితే 13వ తారీఖు ఏదైతే ఉందో అది సాయంత్రం మనకి నమాజ్ తర్వాత ఫాతిహా ఉంటుంది। ఫాతిహా తర్వాత సామూహిక భోజనం అంటే ప్రసాద వితరణ అనుకోవచ్చు మనం। దాని తర్వాత భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చేటటువంటి సుప్రసిద్ధ ఇస్లామిక్ ధార్మిక పండితులతోటి ఒక సదస్సు ఉంటుంది। ఆ సదస్సు తర్వాత గ్రంథోత్సవం, దాన్ని మనం సందల్ అంటాం। నవీద్ బాబా గారి ఇంటి దగ్గర నుండి పీఠాధిపతులు వారి ఇంటి దగ్గర నుండి సందల్ని తీసుకొస్తారు। ఈ కార్యక్రమం రాత్రి 2:30 ప్రారంభం అవుతుంది। అది దర్గాకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ పవిత్ర చందనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అక్కడ లేపనం చేయడం జరుగుతుంది। దాన్ని మొదటి రోజు। ఇక రెండవ రోజు కూడా ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు అనేక మంది భక్తులు ఈ కార్యక్రమానికి వస్తూ ఉంటారు। బార్గాన్ని సందర్శించుకొని తమ గౌరవ ప్రపత్తుల్ని అక్కడ తెలియజేసుకోవడం జరుగుతుంది। ఆ తర్వాత మళ్ళీ సాయంత్రం అక్కడ మళ్ళీ ఫాతిహా ఉంటుంది, భోజనం ఉంటుంది, అన్న వితరణ కార్యక్రమం ఉంటుంది। కుల మతాలకు, వర్గాలకు, వర్ణాలకు అన్నిటికీ అతీతంగా అందరూ కూడా ఆ భోజనంలో పాల్గొంటారు, పార్టిసిపేట్ చేస్తారు। ఆ తర్వాత అక్కడ సమా ఉంటుంది। సమా అంటే ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని కీర్తిస్తూ, ఔలియా అల్లాహ్ని కీర్తిస్తూ ఇవన్నీ సాగేటటువంటి ఒక కీర్తనలు అవన్నీ కొనసాగుతాయి। ఇక మూడవ రోజు ఏదైతే ఉందో ఉదయం ఫజర్ నమాజ్ తర్వాత ఫాతిహా ఉంటుంది, సలాం ఉంటుంది, తర్వాత దరూద్ షరీఫ్ చదువుతారు। పీఠాధిపతులు వారి యొక్క ప్రత్యేక ప్రార్థనతో ఈ సంవత్సరానికి ఉరుసు వేడుకలు పరిపూర్ణమవుతాయి। మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి మళ్ళీ మనం అందరం కలుస్తాం। ఇదంతా జరుగుతూ ఉండేటటువంటిది। అయితే వచ్చేటటువంటి భక్తులకి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రభుత్వ పాలనా యంత్రాంగం ఏదైతే ఉందో అన్ని పటిష్టమైనటువంటి చర్యల్ని తీసుకోవడం జరిగింది। లైటింగ్ కానివ్వండి, శానిటేషన్ కానివ్వండి, శుభ్రం చేయడం కానివ్వండి, ఇవన్నిటిని కూడా ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా, ఎవరికి ఎలాంటి కష్టం కలగకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వ పాలనా యంత్రాంగం తూర్పు శాసనసభ్యుల వారి నుండి, కార్పొరేటర్స్ నుండి, అలాగే వివిధ హోదాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ నుండి అందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు। శాసనసభ్యుల వారు కూడా ఇప్పటికీ ఒక 2-3 సార్లు ఇక్కడికి పర్యటించడం జరిగింది। మన కలెక్టర్ గారు వచ్చారు, సిపి గారు వచ్చారు, కమిషనర్ మ్యామ్ వచ్చింది, వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా వచ్చి ఇదంతా చూస్తున్నారు। కాబట్టి నిస్సంకోచంగా, నిస్సందేహంగా అందరూ చాలా ఆనందంగా వచ్చి अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर लोकसभा में बीआरएस के अरकान ने तहरीक अल्तवा पेश की।
अलावाज़ी BRS के अरकान ने पार्लियामेंट के असल बाब दाखिले पर इस मसले पर एहतजाज करते हुए इस तहरीक इल्तिवा पर मुबाहिस करवाने का स्पीकर से मुतालबा किया। उन्होंने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। BRS के अरकान ने इस मसले पर हुकूमत के मौक़िफ़ की मजम्मत की और कहा कि तमाम दीगर उमूर को छोड़कर इस रिपोर्ट पर मुबाहिस करवाए जाएँ। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की ज़ेर क़यादत अक़लियतों को क़र्ज़-ए-जात की फराहमी में ताख़ीर किए जाने पर तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन के दफ्तर पर एहतजाज किया गया। मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की ज़ेर निगरानी पीर के रोज़ दरख्वास्त गुजारों बशमूल ख़वातीन ने माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के दफ्तर पर एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाज को मिली व समाजी तंजीमों की तायद भी हासिल रही। एहतजाजियों ने जल्द अज जल्द क़र्ज़-ए-जात फराहम करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक के दफ्तर में मौजूद न होने पर यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन के सदर और मेंबरान ने TSMFC की MD कांति वेस्ली से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सूफी खैरुद्दीन क़ादरी ने हुकूमत तेलंगाना पर गुज़िश्ता 8 सालों से मुसलमानों को नज़रअंदाज करने पर नाराज़गी जताई है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो तमाम दरख्वास्त गुजारों को बैंक के जरिए सब्सिडी लोन फराहम करे। वो आने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे तेलंगाना हुकूमत की कारस्तानी है कि ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन आज जो है ना फरार हो गया। वो हमारे से मिलने के लिए ले आया है, यहाँ पर पुलिस को भर दिया है और मुझे और मेरे साथियों को जो है ना अरेस्ट किया जा रहा है। मैं इस वक्त पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। हम सिर्फ जो है ना फाइनेंस कॉर्पोरेशन से हम ये जवाब हासिल करने के लिए आए थे की जा रही है, जबकि हम पीसफुल तरीके से यहाँ पर हम जो है ना चेयरमैन से मिलने के लिए आए थे। हम कोई गड़बड़ नहीं करे, कोई नारे नहीं लगाए, हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। राब्ता फाउंडेशन की जानिब से एंजल्स फर्टिलिटी और डॉक्टर नौशीनाज डायग्नोस्टिक के ताउन से मुगलपुरा में ख़वातीन के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक़्क़िद किया गया। पुराने शहर के इलाके मुगलपुरा में वाक़ आज़म फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद इस तिब्बी कैंप में लावल्द जोड़ों का चेकअप करते हुए माहिरीन डॉक्टर्स ने उन्हें दवाएं तजवीज़ की हैं। ख़वातीन के मखसूस अमराज के मुतासरीन और फर्टिलिटी मुतासरीन के लिए ये कैंप कारआमद साबित हुआ है। राब्ता फाउंडेशन की सदर सूबिया जुवेरिया ने बताया कि आइंदा मुफ्त कैंप 19 फरवरी को एंजल्स फर्टिलिटी वाक़ फर्स्ट फ्लोर वेस्टफील्ड सेंटर डिलक्स कॉलोनी टोली चौकी में सुबह 10 बजे तक दोपहर 3 बजे मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने मुफ्त तिब्बी कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मैं सूबिया जुवेरिया, राब्ता फाउंडेशन फाउंडर एंड प्रेसिडेंट। आज हमारा सेकंड कैंप है इनफर्टिलिटी पर जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है आज़म फंक्शन हॉल पर। पहला कैंप हमारा था डॉक्टर नौशीनाज नोबल हॉस्पिटल आसिफ नगर पर, जहाँ पर मोर दैन 50 पेशेंट से हम लोगों ने मुलाकात की और जिसमें तकरीबन जो है इनफर्टिलिटी केसेस ही हमसे जुड़े थे। तो आज यहाँ पर कैंप अभी जारी है, कैंप चल रहा है। काफ़ी सारे केसेस हमसे मुलाकात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर जुड़ी हुई है। मेरी अवामुन्नास से गुजारिश है कि ऐसे कैंप्स हम हर संडे ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं अक्रॉस हैदराबाद। हम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे और आपको टाइम एवरी वीक टाइमिंग एंड लोकेशन आपको अपडेट करते रहेंगे। तो अगला हमारा जो कैंप है वो रहेगा एंजल्स फर्टिलिटी सेंटर टोली चौकी पर, जो कि रहेगा 10 बजे से 3 बजे तक। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी ऑफ़र्स और जो भी सर्विसेज हम लोगों ने आप सबके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, आप उससे जो है हमसे जो है राब्ता पैदा करिए और फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। और मैं कीर्ति जी से गुजारिश करती हूँ, डॉक्टर कीर्ति से जो एंजल फर्टिलिटी हेड करती हैं, कि आप इनफर्टिलिटी पेशेंट्स जो जूझ रहे हैं आज प्रॉब्लम से, उनके लिए एक मैसेज दें। थैंक यू सो मच। शादी का वादा करके फंक्शन हॉल न पहुंचने वाले रहमताबाद दरगाह के हाफिज पाशा के खिलाफ लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इंस्पेक्टर लंगर हाउस श्रीनिवास ने बताया कि टोली चौकी की साकिन तबस्सुम फातिमा ने पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई कि नेल्लोर की रहमताबाद दरगाह में उसका इलाज 3 साल से जारी था और इलाज करने वाले शख्स हाफिज पाशा ने उससे शादी का वादा किया था, जिसके बाद शादी के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई थी, ताहम वो शादी के लिए नहीं आया।
इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने कहा है कि लड़की की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुख्तलिफ जावियों से इसकी तफ्तीश की जा रही है। నిన్న రాత్రి 12:15 తబస్సుమ్ ఫాతిమా అనే అమ్మాయి లంగరోస్ పోలీస్ స్టేషన్ రావడం జరిగింది. ఆమె ఒక పిటిషన్ ఇచ్చింది. అందులో హఫీజ్ పాషా అని చెప్పేసి ఈయన నెల్లూరు రమతాబాద్ దర్గాకు చెందినటువంటి చీఫ్ అని చెప్తున్నారు. అతను ఆమె దగ్గర 3 సంవత్సరాల నుంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటానని చెప్తున్నది. ఆమె ఆ విషయంలో నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పినాడు. ఆమెకు 3 సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం ఏర్పడింది నాకు. అతను నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పినాడు. పెళ్లి నిన్న 11వ రోజు ఉండే ఈ టోలీ చౌకి దగ్గర ఒక ఫంక్షన్ హాల్లో. అతను రాలేదు. రాకుండా అతను హాస్పిటల్లో పోయి జాయిన్ అయిపోయాడు. ఆరోగ్యం బాగలేదని చెప్పి డేట్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నాడు. దాని మీద అతని మీద లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పి ఆమె పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ప్రకారంగా ఎఫ్ఐఆర్ చేసినాము. అతను चंद्रायनगुट्टा पुलिस हदूद में मोटरसाइकिल बेकाबू हो जाने के सबब मोटरसाइकिल से गिर जाने वाले एक शख्स की बरसर मौका मौत हो गई है। ये अफसोसनाक वाक़या इतवार की रात में पेश आया है। बताया गया है कि एक शख्स बुलेट मोटरसाइकिल पर चंद्रायनगुट्टा से संतोष नगर की सिमत जा रहा था कि गाड़ी बेकाबू हो गई और वो गाड़ी से नीचे गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलने पर पहुंची चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से अस्पताल मुंतकिल करते हुए मुकदमा दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात है। हम पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या बोले तो इतना ओवर स्पीडिंग में नहीं जाना बोल के रिक्वेस्ट कर रहे। ये सिटी के रोड्स में पूरा बिजी रोड्स रहता और इमीडिएट टर्निंग्स रहता, इसलिए थोड़ा ओवर स्पीडिंग थोड़ा कम करना, सिटी में थोड़ा जान बचा लेना सबका। आदाब जी, करीब हमारे को 130 को 120 से 130 को एक फ़ोन आया था। वो इन्फॉर्मेशन क्या बोले तो इधर फ्लाईओवर से उतरते एक DLRL अपोजिट में एक एक्सीडेंट हुआ था। टू व्हीलर रॉयल एनफील्ड के ऊपर था ना, गिर के स्पॉट डेड हो गया। हम आने के बाद बॉडी उस्मानिया हॉस्पिटल को शिफ्ट करे और उसका वो रॉयल एनफील्ड था गाड़ी। कुछ नाम और एज वगैरह? उसका नाम श्रीहरि बोल के पता चल रहा, फिर भी वेरीफाई करना। उसका एज 29 ईयर्स रहता, इज अ रेजिडेंट ऑफ फलकनामा। कौन से साइड से आ रहा सर उन्होंने? चंद्रायनगुट्टा से संतोष नगर साइड जा रहा था उन्होंने। कितने लोग थे सर? एक ही आदमी था। सर स्पॉट डेड हो गई? हाँ, स्पॉट डेड हो गया। तो कैमरा से वेरीफाई करना, पूरा वेरीफाई करने के बाद पूरा पता मालूम होता। मलकपेट AIMIM रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों सोहेल होटल का दोबारा इफ्तिताह अमल में आया है। शहरियान हैदराबाद को जायकेदार बिरयानी फराहम करने के लिए शोहरत रखने वाली सोहेल होटल वाक़ई मलकपेट का आतिज़ती के हादसे के बाद दोबारा शानदार आगाज हुआ है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने सोहेल होटल की जायकेदार बिरयानी की तारीफ की है। इस मौके पर होटल के MD व दीगर भी मौजूद थे। आज ये मरहूम जमील सेठ के बेटे खादर मौजम सोहेल, प्रोपराइटर होटल सोहेल और मुदस्सिर सेठ, आज हमारा नीचे का सेक्शन का रीओपनिंग हुई है। जो रेनोवेशन का काम था मुसलसिल से अहमद बलाला साहब के हाथों से आज इनॉग्रेशन हो गया सो है और हमारी होटल आज से फुल फ्लैश चालू हो गई सो है। आप सबका वेलकम है। जज़ाकल्लाह। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने हज हाउस में हज 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स के खुसूसी काउंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। हज 2023 के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के अमल का 10 फरवरी से आगाज हो चुका है। आज़मीन की रहनुमाई के लिए हज हाउस में हर साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने इन काउंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। हज कमेटी के अराकीन, ओहदेदारान व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। तो आज हम लोग जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बोल के आज हम लोग आज से शुरू करें और अल्लाह चाहे तो जो है ना 1-2 दिन में स्पीड से जो है ना जितने एप्लीकेशन आते ठीक है। मगर इससे पहले क्या था, VIP कोटा बोल के था, प्राइम मिनिस्टर को और हमारे MPs को या सेंट्रल मिनिस्टर को जिसको भी था कोटा, वो सब कोटा बर्खास्त कर दिए। कोई कोटा वगैरह किसको भी नहीं है, सब नॉर्मल है पूरा। मतलब वो जो कोटा था वो सब हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पूरे स्टेटों में और इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और हम लोग जो है वहाँ पर भी बिल्डिंग खरीद लेना बोल के जो है हरम में
तो वो भी कोशिश है हमारी, और अल्लाह चाहे तो एक बार हम भी विजिट करेंगे। यहाँ से हमारे ऑफिसर्स में से भी कौन चलते, चेयरमैन साहब या हमारे मिनिस्टर साहब जो भी चलते हैं, हम लोग बराबर वहाँ पर एक विजिट करके हम लोग हमारे हाजियों को जितना करीब हो सकता वैसा वहाँ के कौंसल जनरल से बात करके हम लोग करीब में बिल्डिंग लेने की कोशिश करेंगे। और रुबात के लिए भी महमूद भाई और हम लोग मिल के बात करके, और रुबात तो नहीं है बोल के बोल रहे, टूट गए बोल रहे हैं, मगर हम लोग कैसा करना है क्या है, वहाँ हुसैन शरीफ साहब से जो है ना, महमूद भाई के भी अच्छे रुबात हैं, उन्होंने भी एक बार बात करके जो है ना इंशाल्लाह कैसा हो सकता कोशिश करके रुबात का भी कराने की कोशिश करेंगे। उससे हाजियों को जो है ना थोड़ी सहूलत भी होती है, कुछ पैसे भी कम होते हैं उसमें, रुबात में उनको रूम मिल गया करेगा तो अल्लाह चाहे तो जो है ना पूरी कोशिश रहेंगे। और गवर्नमेंट की पूरी मिशनरी अल्लाह के करम से सीएम साहब भी जो है ना पूरी तरीके से जो है ना मॉनिटर करते हैं, यहाँ से लेके सऊदी तक जो है ना हाजियों को जाके आने तक हम लोग पूरे एक्टिव रहते हैं। हमारा स्टाफ, पूरे डिपार्टमेंट और होम मिनिस्टर साहब, सब लोग पूरे, हमारे शफीउल्लाह साहब भी जो है ना रात के 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक यहीं बैठ के जो है ना मॉनिटर करते हैं वो भी, और हम भी सब मिलके एक टीम वर्क करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाजियों को जितनी सहूलत दे सकते देंगे हम, कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान होते हैं, इनको जितनी सहूलत दी है उतना अपने को अजर भी मिलेगा। इस साल को जो है कोई खतरा नहीं है, उनके साथ एक जने जा सकते, हाँ उन एक कंपनी जा सकते, उनके साथ जो है जो भी उनको सपोर्ट चाहिए उन एक जनों को लेके जा सकते, उसको डरा हुए नहीं है, उसको डायरेक्ट ये कर सकते। उम्र की हद 70 ईयर्स कंप्लीट होना हो, 70 और 400 रुपये जो है ना फार्म की फीस होती थी हर साल, अब के फ्री कर दिए, फार्म की फीस भी नहीं ले रहे अब के, पूरी पब्लिक के लिए वो भी एक सहूलत हो गई। और इंशाल्लाह ताला जैसा 4 लाख कुछ रुपयों में हज हो रहा था, अब के जो है ना 3 लाख समथिंग का वो अभी गाइडलाइंस नहीं आए पूरे, इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।